Now let's move on to our chapter 6 of GK, that is Indian ornaments. Children, here I would like to tell you that as I told you earlier also that this is a revised edition, so you will not find this chapter in your ओल्ड बुक्स. जिन्होंने ओल्ड बुक्स ले रखी हैं तो आपको ये चैप्टर अपनी बुक्स में नहीं मिलेगा बिकॉज दिस इज़ अ रिवाइज्ड बुक और उसमें काफ़ी चैप्टर्स हैं जो आपके इस जीके की बुक में न्यू हैं. तो आई वुड सजेस्ट यू टू बाय योर न्यू बुक्स ऑफ जीके ओनली बिकॉज देयर आर मैनी चैप्टर्स. आगे भी आप देखेंगे कि काफ़ी चैप्टर्स जो हैं वो चेंज हैं. सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट. Indian ornaments. Now first of all, what are ornaments? Ornaments are the things used to make something look more attractive. Like मतलब कोई भी चीज़ जिससे कि हम मतलब किसी चीज़ को और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं. Like हम लोग like when we dress up तो हम लोग different type की jewelry पहनते हैं to look more attractive. So and Indian craftsmen have immense talent in them that they have carried forward सिंस जनरेशन्स. और इंडियन जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो वर्कर्स हैं, जो स्किल्ड हैं क्राफ्ट में, अब ऑर्नामेंट्स मेकिंग में, दे हैव इमेंस टैलेंट. इमेंस मीन्स इमेंस मीन्स एक्सट्रीमली ग्रेट and talent means skill or aptitude. So they have extremely great skill in them that they have carried this skill forward since generations. Many goldsmiths, goldsmith मतलब सुनार जिसको बोलते हैं हम, silver smiths and jewelry makers make intricate jewelry in India. वो लोग they are the makers of intricate means very complicated jewelry in India. Now let us see that this first picture. This is of antique jewelry. Antique means unique, traditional and unique. This kind of jewelry has dull and rough look combined with an old world charm. So this jewelry has dull and rough look but it has an old world charm. पूरी दुनिया में ये काफ़ी ट्रेडिशनल लुक में काफ़ी फेमस है इस टाइप की ज्वेलरी. The next is the bead jewelry. Beads are small pieces of glass or stone threaded to make necklace. You can see that this necklace is made up of beads only, and this is a 5,000-year-old art dating back to the Indus Valley civilization. और ये जो आर्ट है ये 5,000 years back Indus Valley civilization के टाइम पर लोगों ने इसको स्टार्ट किया था. नेक्स्ट इज़ filigree jewelry, ornamental work of fine wire formed into delicate tracery. Children, you can see in this picture एक बहुत ही पतली वायर को लेकर उससे डिज़ाइन किया गया है ये. It is done on silver with precision and technicality. It is very detailed. Precision means exactness or accuracy. And this work is done on silver with great exactness and technicality. बहुत ज़्यादा टेक्निक वाला वर्क है ये. And the next is this ब्राइडल ज्वेलरी. आपने देखा ही होगा ब्राइड्स वेडिंग में ब्राइड्स तकरीबन ऐसी ही ज्वेलरी पहनती हैं. काफ़ी हैवी टाइप ट्रेडिशनल डिज़ाइंस आर स्टिल प्रेफर्ड फॉर ब्राइडल ज्वेलरी. Next is ivory jewelry. Ivory jewelry, children, it is made from the tusk of elephant. जो ivory है ना, हाथी दांत जो होता है ना, that is made up of ivory. और ये ज्वेलरी है ये उस हाथी दांत से बनी हुई है. This jewelry is made from tusks of elephant. And in states like Gujarat and West Bengal, ivory bangles are a must part of bride's jewelry. और गुजरात और वेस्ट बंगाल में ivory की जो bangles हैं they are must for a bride's jewelry. एक दुल्हन को ivory की bangles पहननी must होती हैं, यानी compulsory होती हैं उनके लिए ये bangles पहननी. जड़ाऊ ज्वेलरी. चिल्ड्रन, आपने भी देखा होगा स्टोन्स लगे होते हैं. आजकल तो काफ़ी पॉपुलर है जड़ाऊ ज्वेलरी. डिफरेंट टाइप्स के स्टोन्स होते हैं ज्वेलरी में लगे हुए. जैसे नग भी लगे होते हैं
वो भी जड़ाऊ ज्वेलरी में ही आता है. दिस टाइप ऑफ ज्वेलरी इज़ फेमस सिंस मुगल टाइम्स एंड इज़ मेड बाय हाईली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन मोस्टली इन राजस्थान एंड गुजरात. ये मुगल टाइम्स में काफ़ी मतलब फेमस हुई थी और इसके लिए काफ़ी स्किल्ड क्राफ्ट्समैन चाहिए होते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ ज्वेलरी इज़ मोस्टली फेमस इन राजस्थान एंड गुजरात. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज ऑफ चैप्टर 6. कुंदन ज्वेलरी. ये थोड़े मोटे स्टोन्स होते हैं ज्वेलरी में. इट इज़ मोस्ट पॉपुलर सिंस मुग़ल एरा. ये मुग़ल्स के टाइम से काफ़ी पॉपुलर है एंड वॉज कैरिड टू राजस्थान बाय दिल्ली क्राफ्ट्समैन. और इसको दिल्ली के जो क्राफ्ट्समैन हैं वो इस टाइप की ज्वेलरी को राजस्थान में काफ़ी उन्होंने फेमस किया है. द नेक्स्ट इज़ मीनाकारी ज्वेलरी. चिल्ड्रन, आपने कई बार अपने पेरेंट्स से भी, अपनी मदर से सुना होगा कि इस ईयरिंग में या इस सेट में मीना वर्क हुआ है. वो रेड एंड ग्रीन का मतलब पेंटेड सा लगता है आपको, बट बेसिकली इट इज़ प्रेशियस स्टोन्स आर सेट एंड इनेमल्ड विद गोल्ड. उसके बाद इनेमल पेंट हो जाता है. इट वॉज इंट्रोड्यूस टू राजस्थान बाय राजा मान सिंह ऑफ अंबर. craftsmen from Lahore were invited by him to राजस्थान. और स्पेशली राजा मान सिंह ने लाहौर से क्राफ्ट्समैन बनाए थे टू मेक दिस टाइप ऑफ ज्वेलरी. देयर स्किल्स एंड राजस्थानी क्राफ्ट्समैनशिप आर कंबाइंड टू क्रिएट दिस. लाहौर के क्राफ्ट्समैन की स्किल और राजस्थान के क्राफ्ट्समैन की स्किल कंबाइन होकर इस टाइप की ज्वेलरी बनी थी. नाउ दिस इज़ Pachikam jewelry. This kind of jewelry was most popular in Gujarat and Kutch. It had vanished but has been reviewed in a recent decade. Although ये अब vanish mean disappear हो गई है इस टाइप की ज्वेलरी, लेकिन अब फिर से रिवाइव हो रही है, रिचार्ज हो रही है recent decades में इस टाइप की heavy jewelry. Now moving on to this picture, this is temple jewelry. This kind of jewelry mainly originated from the jewelry specially made to adorn the idols of gods and goddesses. Idols means the figures of gods and goddesses is basically भगवान की मूर्तियों को कह लो सजाने के लिए ये इस टाइप की ज्वेलरी बनी है. अडॉन मीन्स टू मेक मोर ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव. भगवान की मूर्तियों को, स्कल्पचर्स को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस टाइप की ज्वेलरी बनी. एंड इन साउथ इंडियन टेम्पल्स इट इज़ वेरी फेमस ओवर देयर इन दैट साइड. दिस इज़ ट्राइबल ज्वेलरी. काफ़ी मोटी मोटी सी, ये जैसे ट्राइबल आदिवासी लोग पहनते हैं उस टाइप की ज्वेलरी होती है. ट्राइब्स इन इंडिया हैव यूनिक स्टाइल्स ऑफ ज्वेलरी मेड ऑफ क्ले, बोन, वुड, shells and crude metal. Children, with this it is the end of your chapter 6. Thank you so much.